Assalamu alaikum student. I hope you must have downloaded my lecture A. So I am explaining today what is basically the population and sample that I have explained in my own words and I have taken definitely from the book as well. So let's start again from the population that we have already discussed. That population is basically refers to the aggregate and total, and definitely as far as the book is concerned, the definition is population refers to the total set of observations, and we know that that set of observation can be as small as 10 and can be as large as billions or millions. And I have already given an example in this lecture, so if you read it, if you still have any confusion, you read it and you will get it. The second thing that I will be explaining to actually make a difference between population and sample, that is, the sample is basically the part of the population, and as far as the book is concerned, a sample is basically a set of data collected or selected from a predefined procedure. So let's start from the central theorem. And you must remember that central theorem or central limit theorem is the same as we have discussed the normal distribution. The normal distribution is when the mean, median, mode are equal, and we call it symmetry. A normal distribution is basically happens when skewness is 0. A normal distribution happens when kurtosis is 3. If these three, at least these three conditions satisfied, so we call it normal distribution or central limit theorem. Central limit theorem with a normal population, we need to understand what that actually says, and you must remember the diagram. This is a diagram that shows actually a normal distribution. The normal distribution refers in a simple words that your 50% observations are below the mean and 50% of the observation definitely above the mean. And you can see in a simple diagram that the highest peak is basically between 70 and 75. So it means the mean must be between 70 and 75. This is actually the basic condition of the normal distribution, and the shape of the normal distribution is basically a bell shaped, and we have discussed in the last classes also. Then standard error of the mean. Why do we need to understand standard error of the mean? It is as important as, for example, the standard deviation. And you must remember, I hope so, that what was the standard deviation? Mean actually refers the most repeated value. Mean also represents the central value, the central idea of any observation about the data. As far as the standard deviation is concerned, the standard deviation actually tells you how many observations are below or above the mean, or how far the current observation that you are actually studying is far away from their mean. Let me explain you. Standard error of the mean is as same as standard deviation. It actually refers the same thing, but the difference is why the formula is different. Now you must be thinking, the difference is because in the real world, when we actually research, we do not work on the population. For this, we need standard error of the mean that not only tells you that how far your observation is from the mean, but it also actually tells you how reliable is your sample mean. When we work on sample, as far as, for example, the research question is concerned, you must remember I used to give an example of women empowerment in Pakistan. If I want to know what is the women empowerment in Pakistan, so it is not possible for me that I can estimate all of the, for example, empowerment of women in Pakistan. So for this, I definitely may draw a sample, and that sample definitely has a lot of observation which are being missed because this is the sample, this is not the population. So the first thing, standard deviation tells you how many observations, how many taken observations are
away from the mean. But standard error also tells you that how many observations which is not included in your sample are away from the mean. So that's why the importance of standard error is definitely a little bit more than the standard deviation. So that's why we do not use a simple standard deviation, we use actually standard error of the mean, and the formula is very simple. The standard deviation divided by the under root n, and under root n is basically the square root. So we refer to standard deviation over n as the standard error of the mean. It is longer name is actually the standard deviation. So you need to remember the concept of a standard deviation and standard error is same. For normal mean, we actually calculate standard deviation to check the reliability of the mean. But as far as the estimated mean is concerned, in research, we actually draw a sample and then we estimate the mean. So it means standard error is used instead of the standard deviation. Then the z statistics. Now you need to understand what is the importance of z statistics. I have already told you in the last video what is z stats and how do we actually learn the z table. I did not get any feedback from you that did you get it or did you not get it. तो पहली बात तो ये अगर आप लोग मुझे फीडबैक नहीं दोगे तो मुझे भी समझ नहीं आएगा कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मुझे पता चलेगा आपको कोई डिफ़िकल्टी है. अभी तो मुझे ऐसा लगा दैट लाइक एवरीबडी हैज़ गॉट इट. प्लीज़ डू नॉट गिव द सेम बिहेवियर एज यू यूज़ टू गिव इन द क्लास. ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या नहीं समझ आया, बिकॉज अल्टीमेटली सूनर और लेटर वी हैव टू फेस एन एग्ज़ाम. तो थोड़ा बहुत ये है कि आपको थोड़ा सा खुद भी हार्ड वर्क करना होगा. थोड़ा सा ये है कि मैं भी ज़ाहिर है लीनियंट रहूँगी एज़ फार एज एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही हैं. एंड अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इस तरह समझना मुश्किल होता है. बट प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू गिव योर एफर्ट. आई होप कि वो एक टेम्पो नहीं बन पाता अगर हमारी क्लासेस ना हो, लेकिन बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट टू एक्चुअली लर्न समथिंग. Okay, so let's start the z stats, and to understand the z statistics we have to go through the same thing. Then why do we use the z statistics? I have told you we have population and we have samples. When we are working on large samples, you have to actually make a point. When we have large samples or when we actually have population, so we use z test. So the first thing you need to understand when to use the z test. You will use the z test when you have a large sample, and when you have a population. So it means we are going to use the z test, not any other test, just z test. Second, when your outcomes are more than 2, more than 3, and your outcomes can be multiple, so we also use z test. तो याद रखनी है आपने एक बात ये कि जी टेस्ट कब यूज़ होता है, व्हेन वी हैव लार्ज सैम्पल एंड व्हेन वी हैव पॉपुलेशन. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो रीड इट that in a z-test the sample is assumed to be normally distributed. A z-score is calculated with population parameters such as population mean and population standard deviation. And when you know what is your standard deviation, I mean the population standard deviation, and when you know the population mean, again I am repeating, when you know what is the population mean and when you know what is the population standard deviation, then this formula will be used. This one that you can see, z equals to x minus mu over sigma. That x, actually you must remember that x used to represent mean minus mu over sigma. Now we need to understand this formula. The z is basically the z score, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि z की वैल्यू क्या है. क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एक चीज़ बताई थी कि z टेबल में हम किसी भी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन. हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ होंगी, नॉर्मल मीन होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, लेकिन वो वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू द जी टेबल हमारा सिर्फ 3 तक होता है. तो इसका मतलब ये हमारे पास वैल्यूज़ जो होती हैं वो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं. हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं जी टेबल को, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं. ओके, और हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म our normal values into z test, and this is the formula for this. So
you do not worry about this. I have actually given you a sample question, so you will get it how we do it. Okay, so basically here x is your estimated mean, where your mu is population mean. Mu represents the population mean. Mu represents population mean या फिर large sample mean which will be given in that question, जो कि आपको definitely question में होता है. Then we have divide by sigma, and you must remember that sigma is just not a sigma. ये basically standard deviation है, और when we talk about z stats तो ये basically क्या होगा, आपका standard error होगा. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. Okay, what kind of questions you will be having in the exam, or how we actually get it. तो ये बड़ी अच्छा एक क्वेश्चन मुझे इस बुक में मिला, and that question actually will help you to understand how in the practical life the statistics is applied, because you are a business student, or definitely someday you will be going in some companies. So what kind of task you will be given as far as the statistics is concerned. So let's understand this question, and it will definitely help you out how to understand the z-stats and how do we solve it. The first thing that we are going to solve, I have given a caption: finding the z-value when population standard deviation is known. You will be using this formula only when your population standard deviation is known. You must remember it. When you know what is your population standard deviation, so then you will be using this formula: z equals to x bar minus mu over sigma over under root n, and that sigma over under root n is standard error. लेकिन ये जो आपको सिग्मा यहाँ पर दे रहा है, यू मस्ट रिमेंबर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे शो करते हैं. ये सिग्मा ओवर अंडर रूट एन सिर्फ जब यूज़ होगा व्हेन यू नो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हेन यू डू नॉट नो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर हम इसकी जगह सिग्मा की जगह कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट दैट वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, और वो क्या होता है I will be definitely discussing in the next question. But let's start. The first thing, the first question, and we need to understand this question. Okay, आपको डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया है. आप प्लीज़ इसको डॉक्यूमेंट को अपने लैपटॉप के सामने खोलिएगा, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा एज फार एज दिस क्वेश्चन इज़ कंसर्न. This is actually a very little question or kind of case study about the COLAs. ठीक है, the quality assurance department, the QA department that actually used to measure the quality. You must remember, you must actually studied in the business communication, or for example the organization. The quality assurance department for COLA institution maintains records regarding the amount of cola in their jumbo bottle. What they are doing is, the quality department is doing is, they are actually maintain a record that how much jumbo bottle, each jumbo bottle actually has cola in the bottle. Okay, the actual amount of cola in each bottle is critical. It's very difficult to measure and make equal, but varies a small amount from one bottle to the next. As you see from your eyes, so it looks as that all the colas bottle are filled equally, but definitely when you are going to measure it, so a little bit difference you can find. Okay, so this is the QA department, that definitely the QA department tries to maintain these things. The cola company actually does not wish to underfill the bottles. Definitely वो अपनी bottles को ये तो नहीं चाहेंगे कि एक ज़्यादा और एक कम हो, because they will have a problem with truth in labeling. क्योंकि हर बॉटल में जो कैलोरीज और पूरा उसका जो एक टेबल और चार्ट पीछे दिया हुआ होता है, वो एक एवरेज के मुताबिक दिया हुआ होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ऑन द अदर हैंड, दे कैन नॉट ओवरफिल ईच बॉटल, एंड एट द सेम टाइम ज़ाहिर है वो किसी बॉटल को बहुत ज़्यादा भी नहीं फिल कर सकते और किसी बॉटल को कम भी नहीं फिल कर सकते. ऑन एवरेज वो उस पर सारी कैलोरीज और जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो ऑन एवरेज उसमें जॉट डाउन करते हैं और लिखते हैं. Hence reducing their profits. Their record indicate that the amount of cola follows the normal probability distribution. The mean amount
per bottle is 31.2 ounces. This is the main information. Okay, यानी क्वालिटी एश्योरेंस हर बॉटल की कोला की ऑन एवरेज कितने आउंसेस उसमें कोला होता है वो नोट कर रहा है, और द मीन अमाउंट इज़, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा सैम्पल पॉपुलेशन, इसका मतलब ये पॉपुलेशन है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट द मीन अमाउंट पर बॉटल इज़ 31.2 ounces. दिस इज़ द मीन, द फर्स्ट थिंग. द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, सी दैट व्हाट आई सेड, हम ये जो z इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन का फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे जब हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, एंड दे हैव गिवन यू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.4 ounces इज बेस्ड ऑन 100 ऑफ सैम्पल्स ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. ऑन एवरेज उनका बिलीव है क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस का कि हर बॉटल में 31.2 ounces कोला फिल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के मुताबिक 0.4 ounces कम या फिर ज़्यादा कोला हो सकता है हर बॉटल में. ओके, एट 8 AM today the quality technician randomly selected 16 bottles. So now the quality assurance company actually selected 16 bottles from filling line. The mean amount of cola contained in the bottle is 31.38 ounces. उन्होंने एक 16 बॉटल का सैम्पल लिया, उसमें से एक बॉटल जिसका उन्होंने बाउंस वेट किया तो पता चला उस बॉटल का जो बेसिकली वेट है कोला का डेट इज़ 31.38, जो कि 31.2 ounce से जो एवरेज था तमाम बॉटल्स का उससे थोड़ा ज़्यादा है. अब आपने एक तो ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है. द क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू, वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इज़ दिस एन अनलाइकली रिजल्ट? पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है क्या ये पॉसिबल है. डेफिनेटली ये पॉसिबल है, दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन यू इन द क्वेश्चन. ओके, एंड डेफिनेटली जब ये पॉसिबल है तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट लाइकली द प्रोसेस इज़ पुटिंग टू मच सोडा इन द बॉटल? To put it another way, is the sampling error of 0.18 ounces unusual? अब यहाँ आपको ये अंडरस्टैंड करना है, या आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछना चाह रहे कि ये इसमें सोडा ज़्यादा है या बॉटल क्यों ज़्यादा फिल हुई या कम फिल हुई. यहाँ ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ऑन एवरेज तो रिकॉर्ड ये किया गया था कि 31.2 ounces होता है, लेकिन मेजर करने पे पता चला कि एक बॉटल में 31.38. If you take the subtraction of 31.38 minus 31.2, so you will get 0.18 the difference. So they want to know ये जो 0.18 का डिफरेंस है, अगर हम z टेस्ट लगा के चेक करें तो ये एक नॉर्मल डिफरेंस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर बॉटल में इतना ही डिफरेंस हो. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग कि हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझ लिया है, or for your solution I have explained you that we can use the results of the previous section to find the likelihood that we could select a sample of 16. पहली बात तो हमें ये पता चल गया था क्वेश्चन से कि जब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ने बॉटल्स उठाई तो उन्होंने उस पॉपुलेशन में से यानी पॉपुलेशन बॉटल में से 16 बॉटल्स उठा लिए. तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया जो हमारा अंडर रूट n है उसकी वैल्यू क्या होगी, 16 बॉटल्स. ओके, from a normal population with a mean of 31.2 mu, यानी आपका जो म्यू है पॉपुलेशन मीन, आई हैव टोल्ड यू म्यू क्या होता है आपका पॉपुलेशन मीन, जो कि हमें गिवन था उसकी वैल्यू क्या होगी 31.2. आई हैव एक्चुअली मेंशन इट. 31.38 आपका क्या है, जो एक बॉटल का जो वेट था आउंस, जो कि काफ़ी डेविएट कर रहा था ऑन एवरेज हर बॉटल का. सो ऑन एवरेज जितनी भी बॉटल्स हैं उनका मीन क्या है 31.20, और एक बॉटल का जो आउंस के हिसाब से हमने वेट लिया है वो कितना है आपका 31.38. ठीक है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाज आल्सो गिवन कि हो सकता है कि हर बॉटल 0.4 से डेविएट करे, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा जब हमने 31.38 को माइनस किया 31.20 से तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा था 0.18 का. तो पहले तो ये बात ये पूछ रहे हैं कि ये एक अनयूजुअल बात है. इनका कहने का मतलब यहाँ पर अनयूजुअल बात का ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मोस्टली बॉटल्स
इसी रेट से डेविएट कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि हर बॉटल में इतनी ही डेविएशंस हो सकता है इससे ज़्यादा हो या इससे कम हो, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हाउ डिड वी सॉल्व इट? हमारे पास सिंपल फार्मूला था जी का, हमारे पास एक्स बार भी गिवन था जो कि एक बॉटल का आउंस वेट है, एस्टिमेटेड 31.38 माइनस जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है 31.20 डिवाइड बाय 0.4 अंडर रूट 16। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पहले तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो, 31.38 को माइनस करो 31.20 से, उसके बाद इसको डिवाइड करो इनसे, सो यू विल गेट द आंसर इज़ equals to 1.80. Now we need to understand ये जो 1.80 है ये बेसिकली क्या हमें बता रहा है। मैंने यहाँ कुछ स्टेप्स लिखे हैं और ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो ना ये स्टेप्स। सबसे पहले याद रखना, इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो है ये ग्राफ। अगर आपको ये ग्राफ अंडरस्टैंड करना आता है, समझना आता है, तो आपको सब कुछ समझ आ गया। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि ये ग्राफ बनता कैसे। आज मैं आपको सिर्फ ये लेक्चर पीडीएफ के थ्रू समझा रही हूँ, या फिर बल्कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ नहीं है, वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू समझा रही हूँ। कल मैं आपको ये डायग्राम दोबारा से एक पेपर और पेन के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ताकि आपको मज़ीद जो भी इसमें अगर इस वीडियो के थ्रू नहीं समझ आता तो आपको एटलीस्ट उस पेपर से और पेंसिल से जो कि आप लोगों ने सजेस्ट किया है तरीका, उसके थ्रू आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो आज पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो, कल इसी चीज़ को मैं आपको सॉल्व करके और पेपर और पेन से भी एक वीडियो बना के छोटी सी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यू कैन सी दिस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम बना रही है हाइपोथेटिकली, और आपको ये बात हम याद होगी, मैंने आपको बताया था जो सेंटर पार्ट है वो आपको याद रखना है, वो क्या होता है, मीन होता है। इट इज़ ऑलवेज अ मीन, ओके। आपकी मीन वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई थी, पॉपुलेशन मीन वैल्यू 31.20, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी टेबल में 31, 32 और 100 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं होती। जी टेबल में जो सेंटर नंबर होता है वो हमेशा इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा वो माइनस में होगा, राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पहली चीज़ तो ये कि एज़ फार एज द जी टेबल इज़ कंसर्न, हमने जो भी प्रोसेस यहाँ पे कैलकुलेशन का किया, हमने वो बेसिकली क्या किया, हमने नॉर्मल वैल्यूज़ को जी टेबल में कन्वर्ट किया। हमारा आंसर आया है 0, अगर हम 31.20 को देखें, ठीक है। फिर हमने उसको कैलकुलेट किया जी टेबल से, तो हमें पता चला कि जो डिफरेंस आ रहा है टोटल वो है 1.80 का, जब आपने थ्रू द जी टेबल के फॉर्मूले से इसको एस्टिमेट किया। नाउ वी हैव द वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 1.80। अब आपने ये 31.20 और 31.38 को बिल्कुल भूल जाना है। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ 0 एंड 1.80। क्वेश्चन अगेन मैंने इस स्टेप्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, शायद आपको समझ आ जाए। द न्यूमरेटर ऑफ दिस इक्वेशन इज़ एक्स, यानी जो ऑब्जर्वेशन है 31.38 माइनस पॉपुलेशन मीन, और इसका आंसर है 0.18। दैट इज़ द सैम्पलिंग एरर, दैट इज़ द सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि आपकी मीन में से कितनी वैल्यूज़, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर अवे फ्रॉम योर मीन, ठीक है। द डिनोमिनेटर जो कि उन्होंने सॉल्व किया जो कि 0.1 आया है, जो कि हम इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं एस्टिमेशन के चैप्टर में, ठीक है। जब आपने कैलकुलेट किया तो हमारी जो जी वैल्यू एक्सप्रेस होती है वो क्या है, 1.80। नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ वी कंप्यूट द लाइक्लीहुड ऑफ अ जी वैल्यू ग्रेटर देन 1.80। In Z table, locate the probability corresponding to a Z value of 1.80. It is 0.4641. अब आप ये सोच रहे होंगे ये 0.4641 कहाँ से आया है। आपने क्या करना है, अपनी एक तो बुक खोलनी है, मेरे पास आई होप कि डाउनलोड पड़ी हुई होगी, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, गिव मी जस्ट फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, बुक मेरे पास, यस आई हैव डाउनलोडेड इट ऑल्सो। बुक ये मैं इस वक्त जो यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने अपलोड भी कर दी है आपके पास LMS में, दैट इज़ द बेसिक स्टैटिस्टिक्स
फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, इसका चैप्टर नंबर 8 है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपसे इसलिए भी कहा है इस बुक को रिकमेंड मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब मैं इस बुक को फॉलो कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी जो टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो यूनिवर्सिटी में ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अब यूज़लेस है, वो बिल्कुल बहुत काम की है, बल्कि वो ज़्यादा आसान है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास है नहीं और PDF पे वो बुक अवेलेबल है नहीं, तो मैं इसलिए इस बुक को यूज़ कर रही हूँ। इस बुक में जब आप टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, इस बुक का अपेंडिक्स डी में आप जाएंगे तो अपेंडिक्स डी में यू कैन फाइंड, मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा किधर है अपेंडिक्स डी। अपेंडिक्स डी में जब आप जाएंगे तो आपको ये जी टेबल मिल जाएगा। आई होप सो कि नीचे ही होगा आई थिंक। अगर आप चाहें तो ये अपेंडिक्स जो है आप टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से भी फॉलो कर सकते हैं। और हेयर इज़ द अपेंडिक्स, ठीक है, ये मुझे मिल गया है। अपेंडिक्स डी में भी है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। ओके, नाउ आई वाज एक्सप्लेनिंग यू दिस 0 और 1.80 के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे चेक करेंगे। वी विल चेक इट थ्रू 0, दिस इज़ द 0 एंड हमें जाना है 1.8। पता नहीं आपको ये दिख रहा है सही से या नहीं। एंड इफ़ यू कैन सी द 1.8, the value of 1.8 is 0.4641. You can see the probability between this area and this area is 0.4641. okay, आई थिंक थोड़ा सा ये मैं ऊपर कर देती हूँ। अच्छा, अब आपको बताना है बेसिकली क्या प्रोबेबिलिटी है। ये तो एक नॉर्मल रेंज है ना, दिस इज़ एक्सेप्टेबल कि इतनी मिस्टेक तो हो सकती है 0 से 1.80, यानी अगर एक बॉटल का ऑन एवरेज आउंस कोला फिल है 31.20, तो आपने जब सैम्पल चेक किया एक बॉटल का तो 31.38 है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो कोला आउंसेस का डिफरेंस है ऑन एवरेज से वो कितना और ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन ये था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक्सप्लेन जो क्वेश्चन के थ्रू करना है। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दी हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। व्हाट यू आर एक्चुअली आस्क्ड के 0 से 1.80 के दरमियान कितना डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपने एक्सप्लेन करना है थ्रू द जी टेबल, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है हम कैसे बताएंगे कि 0 से 1.80 के दरमियान कितना डिफरेंस है। ये तो हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी 0.4641 है, लेकिन हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो सबसे पहले तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये पूरा एरिया हमारा 100% का है और ये इक्वली डिवाइडेड है, 50% बिलो द मीन एंड 50% अबव द मीन। तो ये बात याद रखो कि 50% को जब आप प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हो तो ये बन जाता है 0.5। तो याद रखना ये आधा एरिया जो राइट हैंड साइड पे है वो कितना है 0.5 का, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे एरिया है वो कितना है 0.5 का। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, ये मैंने स्टेप नंबर 2 पे लिखा हुआ है, द लाइक्लीहुड ऑफ अ जी वैल्यू ग्रेटर देन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे जो कोला है वो 1.80 से ज़्यादा भी फिल हो सकता है। तो बड़ा अच्छा तरीका है ये निकालने का और बहुत आसान भी है। दैट इज़ 0.5 में से यू कैन सी, ये मैंने पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया हुआ है। अगर मैं आपको पॉइंट 2 दोबारा दिखा सकूं, पॉइंट 2 में मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप समझ जाओ मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग टू अ जी वैल्यू ऑफ 1.80 जो प्रोबेबिलिटी आई है वो है जी टेबल में हमने देखा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
जी टेबल प्रोबेबिलिटी बता रही है 0.4641. द लाइकलीहुड ऑफ अ जी वैल्यू ग्रेटर देन 1.80 इज़, पॉसिबिलिटी ये है कि कोला 1.80 से भी ज़्यादा किसी बॉटल में हो, यानी 31.38 आउंस से भी किसी बॉटल में ज़्यादा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5. अभी मैंने आपको बताया 50%, आधा एरिया कितना होता है 50% का, पूरा एरिया 100% का है। 50% को आप प्रोपोर्शन में अगर लेकर आओगे तो 0.5 हो जाएगा। तो आधा एरिया जो 0.5 है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूँ, जी टेबल में से हमने ये देखा है 0.4641, सो वी विल हैव 0.359 इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी, इज़ बेसिकली द चांस कि किसी बॉटल में 31.38 आउंस से भी ज़्यादा कोला हो। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप 0.359 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये परसेंट में बन जाएगा, और इसका परसेंट है 3.59%, यानी 4% से भी कम प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी बॉटल में जो कोला है वो 31.38 से भी ज़्यादा हो, जबकि ऑन एवरेज कोला कितना है 31.20. सो बेसिकली दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, और हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। आपने जो चीज़ याद रखनी है, हमने सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है, यानी वैल्यूज़ को जो कि नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, हमने उनको कन्वर्ट करना है जी में, जी टेस्ट में या जी टेबल में, और फिर हमें जी टेबल में जाके देखनी है वैल्यू, और फिर उन वैल्यू में से हमें प्लस या माइनस करना होगा। मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगी, व्हाट आई विल डू फॉर योर ईजीनेस, मैं इस क्वेश्चन को बाय हैंड भी एक्सप्लेन कर दूँगी, सॉल्व करके डायग्राम बना के, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए और जैसे क्वेश्चन आप फिर सॉल्व कर सको। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।